Good morning, student. In this video lecture, we are starting the amphibolic pathway. आपने मेटाबॉलिज्म ये एक वर्ड सुना होगा. मेटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है all the chemical reactions which are taking place in the cytoplasm of the cell or inside the organelle. Some reaction are constructive like A plus B give AB. Construction of AB is taking place. It is called as anabolic reaction, that is constructive reaction. And some reaction are taking place in such a way that the huge compound get broken down into small pieces. For example, XY is a bigger substance. When it get broken down into separately X plus Y, it is a destructive type of reaction which is called as catabolism. Respiration, specifically the cellular respiration, is an example of catabolic process because the respiratory substrate, mostly we are discussing about the glucose, but apart from glucose, some complex carbohydrate, protein, fat, these respiratory substrate get broken down into simple compound and finally they get produced as carbon dioxide and water after complete oxidation. So cellular respiration, which is one of the catabolic process, but in some cases anabolism also taking place in the cellular respiration. That's why those pathway which involve in catabolism as well as sometime anabolism, it is called as amphibolic pathway, and it is mostly seen in the TCA cycle, that is Krebs cycle. Now let us discuss about the same. When we have different respiratory substrate, commonly they are also called as respiratory fuel. So some of the common respiratory fuels are carbohydrate, second respiratory substrate is fat, and third one is प्रोटीन. देखिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन का सबसे मेन थीम ये है कि हमको एनर्जी चाहिए होती है किसी भी किस्म के वर्क परफॉर्म करने के लिए. एनर्जी के लिए हम लोग फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं. ये फूड मटेरियल खास तौर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से बना हुआ होता है. तो जब ये फूड मटेरियल हमारे बॉडी में जाएगा, जब इस फूड मटेरियल का डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड्स के अंदर, बॉडी फ्लूइड में, तो कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या फैट हो, इन तीनों भी बायोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होते होते हमको एनर्जी मिलती जाती है जो कि स्टोर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट एनर्जी करेंसी. तो हम देखते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा. कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर सपोज कर लीजिए ग्लूकोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्ट इनटू इट्स वेरी सिंपल मोनोमर फॉर्म, दैट इज ग्लूकोज. Because this glucose is easily diffusible in the cell, so diffusing property make glucose very easy to enter inside the cell. कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में इंटर इजीली नहीं हो सकता है. इसीलिए इस कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे मोनोमर सेपरेट हो जाते हैं, फिर एक एक करके ये मोनोमर सेल के अंदर आसानी से डिफ्यूज हो जाएंगे. सेकेंड थिंग, ग्लूकोज इज अ चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ग्लूकोज को चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये इजीली डिफ्यूजेबल है और दूसरा इजीली ऑक्सीडाइजेबल है, इजीली
ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ग्लूकोज में जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो बहुत आसानी से ग्लूकोज को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन निकलते जाएंगे NAD उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, TCA साइकिल में NAD के साथ साथ FAD एक्सेप्ट करेगा, और लास्ट लेक्चर यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने स्टडी किया कि NADH FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब फिर से ऑक्सीडाइज हो गए तो हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। ओके, so this glucose is easily oxidizable and easily diffusible in the cytoplasm of the cell. That's why glucose is supposed to be chief respiratory substrate. Second thing, if fat act as a respiratory fuel or respiratory substrate, then this fat get broken down into its two simple unit. The first simple unit is fatty acid and second simple unit is glycerol. ओके, फैटी एसिड ये दो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है। फैटी एसिड बॉन्ड ग्लाइसेरॉल इज इक्वल टू फैट। तो रेस्पिरेशन में जब फैट यूज होगा तो सबसे पहले फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल सेपरेट हो गए, फिर फैटी एसिड डायरेक्टली एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर के TCA साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। ग्लाइसेरॉल DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर लास्ट हाफ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट करेगा, एसिटाइलेशन कंप्लीट करेगा और TCA में इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन यह हो गया कैटाबॉलिज्म से रिलेटेड, क्योंकि फैट का ब्रोकन डाउन हो रहा है ना, तो इट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। लेकिन अगर सेल को दोबारा फैट की जरूरत पड़ती है तो जिस तरह से फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, हो सकता है कि उसी तरह एसिटिल कोएंजाइम ए रिवर्सिबली वापस से फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाए। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से ग्लाइसेरॉल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, अगर ग्लाइसेरॉल की सेल को जरूरत पड़ गई तो हो सकता है कि DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस से ग्लाइसेरॉल में कन्वर्ट हो जाए। फिर फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल कंबाइन हो गए और क्या बना लेंगे? फैट। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया क्योंकि फैट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। तो TCA साइकिल हमारा ऐसा पाथवे है जिसमें एनाबॉलिज्म भी हो सकता है और कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है। इसीलिए खासतौर से क्रेब्स साइकिल को यानी TCA साइकिल को एम्फीबॉलिक पाथवे का दर्जा दिया जाता है। यही नहीं बल्कि कई अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो TCA साइकिल के इंटरमीडिएट कंपाउंड से तैयार होते हैं, जैसा कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ये TCA साइकिल में एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो 5 कार्बन कंपाउंड होता है। तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जरूरत पड़ने पर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। द नेम ऑफ अमाइनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड। ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं जो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर TCA साइकिल इज कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे। लास्टली वी आर डीलिंग विथ प्रोटीन। If protein act as a respiratory substrate, you know that protein is made up of chain of amino acid. All these circles are amino acid which form the chain, and amino acid are connected by peptide bonds. So these are the peptide bond. So if our cell use protein as a respiratory substrate, then first of all from the cytoplasm of the cell, protease enzyme comes, and this protease enzyme break all the peptide bonds and separate the amino acid from each other. So as the action of protease enzyme, amino acid get separated and each amino acid get converts into the pyruvic acid. Pyruvic acid is the end product of glycolysis. And now this pyruvic acid continue with acetylation and TCA cycle. So these are the three major
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हमने देखा कि किस तरह से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन होते हैं, सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये सेल में डिफ्यूज होकर के अपना रेस्पिरेशन खुद परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, मोनोमर्स की हम बात करते हैं या फिर सिंपल कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल वर्जन है ग्लूकोज, फैट के सिंपल वर्जन से फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल, प्रोटीन का सिंपल वर्जन होता है अमाइनो एसिड। जब आप इन तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, यानी ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसेरॉल एंड अमाइनो एसिड, इन सभी में सबसे इजी ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होता है, इसीलिए ग्लूकोज को चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाएगा। चलिए अब हम एम्फीबॉलिक पाथवे डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिस तरह एनसीईआरटी बुक में दिया है। पहले मैं आपके सामने स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन लिख दूं। फॉर एग्जांपल, वी हैव कार्बोहाइड्रेट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, this carbohydrate get converts into its simple form, which is called as glucose. Okay, now this glucose perform glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस की सभी रिएक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। जो मेन रिएक्शंस हैं एम्फीबॉलिक पाथवे में जो यूज होगी उनके हम नाम लिखते हैं। देखिए, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रुक्टोज 1,6 bis phosphate. This fructose 1,6 bis phosphate get splitted or broken down. This is cleavage reaction, and after breaking of fructose 1,6 bis phosphate, what will we get? We get the two molecules 3-phosphoglyceraldehyde and another fraction is dihydroxyacetone phosphate. They are isomers of each other. They may be converted into each other, but most commonly dihydroxyacetone phosphate is converted into 3-phosphoglyceraldehyde, because aldehyde is easily converted into the acid. Now 3-phosphoglyceraldehyde again get converts into 1,3 bis-phosphoglyceric acid, 1,3 bis-phosphoglyceric acid. Now अब ये इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड नहीं है यहाँ पे लिखने के लायक। तो 1,3 bis-phosphoglyceric acid undergo dephosphorylation and form the ATP to converts into 3-phosphoglyceric acid. यहाँ पे बच्चों हमको ATP मॉलिक्यूल मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। So in this reaction we will get one molecule of ATP. इसको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करना है क्योंकि हमको काउंटिंग करनी है कि कौन सा मोनोमर कितने एटीपी प्रोड्यूस करेगा। नाउ 3-PGA गेट कन्वर्ट इनटू 2-phosphoglyceric acid, phosphoenol pyruvic acid एंड pyruvic acid। यहाँ पे जब थोड़ा और पीछे चलते हैं हम, जब रिएक्शन नंबर 6 होगी तब आपको एक NADH मॉलिक्यूल मिलेगा, एंड यू नो दैट ईच NADH मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूसेस 3 molecules of ATP, 3 molecules of ATP. In which reaction? In reaction number 6. तो 3 ATP पहले बनेंगे, NADH2 जब ETC परफॉर्म करेगा, और उसके बाद में ये एक ATP सबस्ट्रेट लेवल है। आप डिटेल रेफरेंस के लिए ग्लाइकोलाइसिस वाला पार्ट फिर से एक मर्तबा देख लीजिएगा, ठीक है। तो 3-phosphoglyceric acid आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुविक एसिड के बाद में एसिटाइलेशन रिएक्शन होगी, ओके। एसिटाइलेशन में आपको प्रोडक्ट मिलेगा एसिटिल कोएंजाइम ए,
याद रखने एसिटिल कोएंजाइम ए, और इस दरमियान फिर से एक NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, and that NADH molecule will again gives you 3 molecules of ATP. ये हम सिंगल मॉलिक्यूल का रेफरेंस ले रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं कि अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल से आगे बढ़ेंगे तो आपको इतने एटीपी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप डबल मॉलिक्यूल से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे सिंपली एटीपी भी दुगने हो जाएंगे, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये यहां पर परफॉर्म करेगा, मतलब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म करेगा साइट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज क्रेब्स साइकिल। अब बच्चों आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि क्रेब्स साइकिल में कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं, कितने FADH2 प्रोड्यूस होते हैं और कितने सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोड्यूस होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूं सिंगल राउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल के लिए। सो सिंगल राउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल विल गिव्स यू 3 molecules of NADH which gives, एक NADH 3 ATP देता है, तो 3 NADH कितने ATP देंगे, 3 multiplied by 3 ATP, so you get 9 molecules of ATP. Okay, same Krebs cycle will produces 1 ATP molecule as a substrate level phosphorylation between succinyl coenzyme A to succinic acid, and in the same TCA cycle FADH2 also produces 1 molecule of FADH2 gives 2 molecules of ATP. So 1 FADH2 worth for 2 molecules of ATP. Okay. अभी आपको यहां पर मैं बाइफर्गेशन करके डिटेल में बताया हूं। सिर्फ एटीपी अगर आप काउंट करेंगे तो 9 + 1 10, 10 + 2 12। ओनली क्रेब्स साइकिल विल गिव्स यू 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ओके, दिस लिंक रिएक्शन गिव्स यू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड ग्लाइकोलाइसिस gives 3 plus 3 and 2 molecules of substrate level। रिएक्शन नंबर 7 और रिएक्शन नंबर 10 बाकी है ग्लाइकोलाइसिस की। रिएक्शन 7 से 1 एटीपी प्रोड्यूस होगा और रिएक्शन नंबर 10 से 1 एटीपी प्रोड्यूस होगा, तो 2 molecules of ATP एज अ सबस्ट्रेट लेवल फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल का रन अप है। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGL से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको इतने एटीपी मिल सकते हैं। ठीक है, सो 1 molecule of glucose will produces double amount of ATP rather than this. Now we are going to discuss that if fat act as a respiratory substrate, okay, then fat get broken down into fatty acid and the second molecule is glycerol। जरा ध्यान से देखिएगा अब यहां पे फैटी एसिड गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। 1 molecule of fatty acid converts into 1 molecule of acetyl coenzyme A। अब फैटी एसिड का जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा या ऑक्सीडेशन होगा तो एक फैटी एसिड यहां पर आने के बाद आपको कितने एटीपी देगा ये आप काउंट कर लीजिए। सो 1 molecule of fatty acid gives you total 12 molecules of ATP। तो हम लोग यहां पर नोट कर सकते हैं कि 1 molecule of fatty acid gives 12 molecules of ATP। Okay, and similar to this, when glycerol
undergo oxidation in the cellular respiration to produce ATP, then this glycerol get directly converts into dihydroxyacetone phosphate. One molecule of glycerol converts into one molecule of DHAP, and one molecule of DHAP get converts into three molecules, one molecule of 3-PGAL. फिर से रिवाइज करता हूं, one molecule of glycerol converts into one molecule of DHAP, one molecule of DHAP get converts into one molecule of 3-PGL. अब नीचे जितना भी लिखा हुआ है ये one molecule of 3-PGL के ATPs हैं. Let us count all these ATP. Okay, so right from 3-PGAL, number of ATPs 1 plus 3 plus 2 कितने हो गए? 6. 6 plus 3 9. Okay, 9 plus 12 will be 21. एक मर्तबा फिर से देख लेंगे कि रिएक्शन नंबर नहीं, ये जो 1 ATP है ये एडिशनल है, इसको यहां पे नहीं होना चाहिए. आप ग्लाइकोलाइसिस डिटेल में एक मर्तबा देख लेंगे तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. ये रिएक्शन नंबर 6 के 3 ATPs हैं, रिएक्शन नंबर 7 और रिएक्शन नंबर 10 का एक एक ATP, ऐसे 2 ATP. सो 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, and 8 plus all this together be 12, become 20. So whenever one molecule of glycerol get oxidized through the respiratory pathway, it will produces 20 molecules of ATP. Okay, अभी आपको क्वेश्चन पूछता है कि when one molecule of fat get oxidized, it will produces how many ATP? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 12 plus 20 is equal to 32. So 32 ATP are produces when one molecule of fat get oxidized. अब यहां पे देखिए बच्चों, एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करता हूं. जब आप बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूसेस बाय ग्लूकोज इज 38 एंड फैट विल प्रोड्यूसेस, यहां पर अभी फिलहाल हमने देखा फैट विल प्रोड्यूसेस 32 एटीपी. जो पॉइंट आपको पढ़ते समय डिटेल स्टडी करते समय सीखने को मिलेगा वो ये है कि फैट ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करता है और कार्बोहाइड्रेट कम एटीपी प्रोड्यूस करता है. फैट के एटीपी ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट के एटीपी कम. लेकिन यहां पर अभी हमारे सामने क्या है कि फैट के एटीपी 32 है, कम है, और ग्लूकोज के एटीपी 38 है. मैं इस पॉइंट को अभी जस्टिफाई करता हूं. हमारे पास में फैट 3 टाइप की होती है. मोनोग्लाइसेराइड, जिसमें एक ग्लाइसेरॉल और एक फैटी एसिड रहेगा. तो मोनोग्लाइसेराइड प्रोड्यूसेस, यहां पे लिखता हूं ऊपर, मोनोग्लाइसेराइड इज इक्वल टू 1 molecule of glycerol plus 1 molecule of fatty acid. Okay, so it will produces how many ATP? आपके सामने यहां लिखा हुआ है, आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं. 1 glycerol plus 1 fatty acid means 20 plus 12, it will produces 32 ATPs. Okay, second type of fat is diglyceride, contain 1 molecule of glycerol but 2 molecules of fatty acid. Therefore, it is called as diglyceride. Now, this diglyceride would produces how many ATP? 1 fatty acid, 12 ATP. So, 2 fatty acid equals to 24 ATP. So, यहाँ पे 24 ATP आ जाएंगे और यहाँ पर 20 ATP. तो कैलकुलेट कीजिए 20 plus 24 कितना होता है? Yes, very good. 20 plus 24, it will become 44 molecules of ATP produces by diglyceride. And third type of fat is triglyceride, based on 3 molecules of fatty acid. 1 molecule of glycerol plus 3 molecules of fatty acid. Okay. अब देखिए, एक फैटी एसिड 12 एटीपी देता है
तो 3 फैटी एसिड कितने एटीपी देंगे? 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 36। ओके, तो यहां पर आ जाएंगे 36 एटीपी प्लस 1 ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल 20 एटीपी देता है, कैलकुलेट कीजिए, तो योर आंसर विल बिकम 56 एटीपी। एंड दिस ट्राइग्लिसराइड इज मोस्ट कॉमन फैट which is used in our body as a source of respiration. ग्लूकोज को आप कंपेयर करेंगे ट्राइग्लिसराइड के साथ में, जो हमारे बॉडी में चीफ रेस्पिरेटरी फ्यूल होता है, ट्राइग्लिसराइड और ग्लूकोज। तो ट्राइग्लिसराइड गिव 56 एटीपी एंड ग्लूकोज गिव 38 एटीपी। अब आप लोग बोलिए कि किसका एटीपी ज्यादा है? ट्राइग्लिसराइड का। मींस फैट प्रोड्यूस, एंड ट्राइग्लिसराइड इज अ common fat which is used in our body as well as in the body of plants as well as in the body of animals. So this fat produces huge amount of ATP as compared to the carbohydrate as well as protein. अब प्रोटीन की तरफ हम लोग आते हैं, चलिए वापस से। If fat act as a respiratory substrate, then this is a calculation of ATP. Now suppose if protein act as a respiratory substrate, then what will happening here? प्रोटीन, तो प्रोटीन पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम अटैक करेगा? प्रोटीएस। दिस प्रोटीएस ब्रेक ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड एंड सेपरेट्स द अमाइनो एसिड। ओके, नाउ दिस अमाइनो एसिड get directly converts into the पायरुविक एसिड। ध्यान से देखिएगा, अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट्स इनटू द पायरुविक एसिड। लेट अस कंसीडर ओनली वन अमाइनो एसिड हियर, सो वन अमाइनो एसिड कन्वर्ट्स इनटू वन पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड से नीचे ऑक्सीडेशन होगा, ऊपर वाली रिएक्शन कोई काम में नहीं आने वाली है। इसीलिए आप लोग देखें कि पायरुविक एसिड के बाद आखिरी तक कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो पायरुविक एसिड के बाद एसिटाइलेशन है जो 3 एटीपी देगा थ्रो NADH मॉलिक्यूल, एंड देन फाइनली क्रेब्स साइकिल गिव 12 एटीपी। ओके, सो 12 plus 3 will become 15 ATP. So when one molecule of pyruvic acid get oxidized through electron transport chain, it will produces 15 molecules of ATP. लेकिन प्रोटीन में, किसी भी प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड तो होता नहीं है, एक से ज्यादा अमाइनो एसिड रहेंगे। कितने भी अमाइनो एसिड रहे, एक अमाइनो एसिड का एटीपी 15 है, तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटीपी आ जाएंगे। एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑन 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड और 500, ह्यूज अमाउंट ले लेते हैं, protein consisting on 500 molecules of amino acid, then that protein gives how much ATP? समझ रहे ना? तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड कितने हैं? 500। एक अमाइनो एसिड आपको 15 एटीपी देगा, तो 500 अमाइनो एसिड कितने एटीपी देंगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका? 15 15 75 75। 7,500 ATPs are obtained due to 500 amino acids. So this is all about the respiratory fuels and amphibolic pathway. एक एक रिएक्शन बहुत अच्छे से बच्चों याद रखना है, बल्कि आपके एनसीईआरटी बुक का जो पेज है जिस पर ये चार्ट दिया है उस पर आप एटीपी लिख लें और अपने रजिस्टर पे फिर से ये पूरा एज इट इज बनाए, तब आपको क्लियर होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने एटीपी देता है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में टेक्स्ट तो उसने दिया है, डिटेल स्टडी कर रही है आपका काम है, तो वो यही चेक करते हैं कि आपने डिटेल स्टडी किया है या नहीं किया है। तो ये सब टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आपके पास में लिख के रखें। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है बच्चों रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट, दैट इज RQ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट। सिंपली इसको RQ से जाना जाता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन
वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द रेस्पिरेटरी पाथवे। यानी जब हम ग्लूकोज का रेस्पिरेशन स्टडी करते हैं, तो मैं इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा समझ में आए। C6H12O6 ओके प्लस 6 molecule of O2. This is aerobic respiration because oxygen is involving with the substrate. Will produces 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of water plus 38 molecules of ATP. इस रिएक्शन में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की तरफ और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, और फॉर्मूले में फिट कर देना है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है आपके पास में? ग्लूकोज, विच इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर कार्बोहाइड्रेट, मींस RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपका आंसर क्या रहेगा? फॉर्मूले में फिट कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के कितना वॉल्यूम है? 6, तो यहां पर ऊपर आ जाएगा 6। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 6, तो डिनोमिनेटर में 6 लिख दीजिए। 6/6 गेट 1। सो RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट इज ऑलवेज 1, विच इज ऑल्सो नोन एज यूनिटी। ये वर्ड से ज्यादा जाना जाता है 1 को RQ की लैंग्वेज में। यानी क्वेश्चन आपको इस तरह से देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट हैव यूनिटी रेस्पिरेटरी क्वोशंट, यानी 1 वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशंट। तो आपको याद रहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद कई ऐसे सबस्ट्रेट है जिनका कैलकुलेशन किया गया। फॉर एग्जांपल RQ ऑफ प्रोटीन, so RQ of protein is found to be 0.9. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर फैट, इसको कैलकुलेट किया गया, इसका आंसर है 0.7. वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल फॉर फैट मॉलिक्यूल इज ट्राइपाल्मिटिन, जिसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0.7 होता है। यानी प्रोटीन और फैट दोनों का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लेस देन 1 हो गया। ये याद रखिएगा पॉइंट अच्छे से। फिर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, RQ for organic acids. So RQ for organic acid is always greater than 1 or more than 1. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दी गई कि भाई रेस्पिरेटरी क्वोशंट इज 1.2, 1.3, 1.4 and more than 1 point, so your answer will be obviously organic acid, since because only organic acid have respiratory quotient value greater than 1. And finally, if we are studying about the anaerobic respiration, that is fermentation. Anaerobic का मतलब होता है बच्चों respiration without oxygen, यानी रिएक्शन ये रहेगी पर यहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, 0 ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 1 हो या वॉल्यूम 10 हो, कितना भी वॉल्यूम हो, डिवाइडेड बाय अगर आप 0 करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा इंफिनिटी। ओके, सो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इंफिनिटी। ये सारी वैल्यूज को रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए और ये एग्जाम के अंदर पूछने के लायक है। ठीक है।